Good morning, students of class 7th. Here is subject science to you, and here is I want to teach you lesson 3rd, fiber to fabric. So student, please pay attention and listen carefully. What is fiber and what is fabric? Fiber means रेशा होता है, फैब्रिक मीन्स क्लॉथ से ही जानते हैं ड्रेसेस बनते हैं जिसको हम लोग पहनते हैं. सो स्टूडेंट्स, how fabric prepared from fiber, this is the story about so let's start the story. Natural fibers are thread obtained from plants and animals. Natural fibers are threads. These are like fibers, strands which are obtained from plants and animals. In class 6 we have learned about some fibers obtained from plants which are used to make fabric, जिसका यूज़ हम फैब्रिक बनाने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्लांट गिव अस कॉटन फाइबर. कॉटन प्लांट हमें क्या देता है? कॉटन फाइबर देता है. विच आर यूज फॉर मेकिंग कॉटन फैब्रिक, जिससे हमें कॉटन फैब्रिक बनते हैं. कॉटन, फ्लैक्स, जूट आर ऑल प्लांट्स फाइबर्स. ये सब फाइबर. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फ्लीस. एनिमल्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो ऐसे फाइबर्स के बारे में जो एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, दैट विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. तो टू में इम्पॉर्टेंट एनिमल्स फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क. Wool comes from animals such as sheep, goat and yak, whereas silk comes from silkworm wool. Silk are animal fibers. Silk जो होता है, देखिए आप घरों में मम्मी की जो साड़ी होती है वो सिल्की साड़ी रखी होती है, रेशमी साड़ी, जो कि एनिमल फाइबर है. Wool is used for knitting sweaters, weaving shawls, others cloth. Silk is used for making sarees and other dresses. We will now discuss production of wool and silk in detail one by one. Let's start with wool. आओ wool के साथ शुरू करें. Wool is the most commonly used animal fiber. Very common. Everybody use wool. So we must know how a wool obtained, how it made comfortable to wear for us. Wool is the soft, wavy, curly hair which covers body of sheep. Actually, wool is modified form of hair that grows with waviness. Because of waviness of the woolen fabric have greater bulk, hence trap more air. Due to this, woolen fabric keeps us more warm during the cold winter days. ये हवा को पास नहीं होने देता है, इसीलिए उसके बॉडी पे ज़्यादा हेयर होते हैं. Wool comes from sheep. Actually, wool is obtained from the fleeces of, fleece means hair. sheep के hair से प्राप्त होता है wool, भेड़ की बाल से. sheep grow wool on their body once a year. ये साल में एक बार उगता है उसके बॉडी पे. and the wool is sheared, cut off. उसको काट दिया जाता है. through wool comes mainly from sheep. Some other animals also give us wool. This is discussed. Here is the example. Animal that yields wool, मतलब animals which contains wool या which give us wool. Wool comes from animal like sheep, goat, yak, camel, llama, alpaca. In other words, yielding animals are sheep, goat, yak, camels, llama, alpaca. Wool yielding bears a thick coat of hair on their body. It is this hair which give us wool. यही वो हेयर्स हैं जो हमें बाल देते हैं, ऊल देते हैं.
देखिए आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, दीज आर ऊल यील्डिंग एनिमल्स। ये जो है ऊल यील्डिंग एनिमल्स हैं। इसमें जो है सीप, गोट, याक देख रहे हैं यहाँ पे, कैमल एंड लैल्मा, इट आल्सो गिव अस अल्पाका, इट आल्सो गिव अस एनिमल्स ऊल। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सम। Wool is the most commonly obtained from sheep. Sheep are the reared in many parts of India for wool. The name of some of the breeds of sheep reared in the country for obtaining wool. The quality wool obtained and names of the state where these sheep are found. यहाँ पे देख सकते हैं some Indian breeds of sheep. लोही, it has good quality wool. Rajasthan, it is found in Rajasthan and Punjab. रामपुर, बुसैर, ब्राउन फ्लीस उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नाली, कारपेट वूल पाया जाता है जिससे हम कारपेट बनाते हैं। यह राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। बखरवाल फॉर वूलन शॉल, जम्मू एंड कश्मीर। मारवाड़ी, कोर्स वूल, मोटा वूल होता है, गुजरात में। पटनवाड़ी फॉर होजरी, गुजरात में। द हेयरी स्किन ऑफ sheep has two types of fiber that form its fleeces. The fur and second the fine soft under hair close to the skin. जो स्किन के बहुत पास होता है, ऊपर जो होता है वो फर होता है और नीचे जो होता है वह एक तरह से कह सकते हैं कि वह फ्लीस होता है। फॉर मेकिंग वूल। The process of selecting parent sheep for obtaining special characteristics in their offspring such as underhair is called selective breeding. उसको हम selective breeding कहते हैं। The natural color of wool is generally creamy. जनरली जो है क्रीम कलर का होता है, white. Through some breeds of sheep produce wool having brown and black color. Wool is obtained from goat hair. Under fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called pasmana shawls. Pasmana shawl is very famous. Angora wool is obtained from Angora goat. Angora goat से पाया जाता है, which are found in hilly region, जिसको हम hilly region में पाए जाते हैं। hilly region में जिसको हम पाते हैं जम्मू कश्मीर के। और याक है thick and long hair on their body. On their body which yields wool. Yak wool is common in hilly region of Tibet and Ladakh. याक का जो ऊल होता है तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। Hair on the body of camel are also used as wool. The animals called llama and alpaca, which are found in South America, have hair on their body which are processed to yield wool. Please note that through the hair on the body of animals such as sheep, goat and yak etc. constitute wool, but in everyday language, wool means the processed wool, which is the wool yarn used for knitting sweaters and making shawls too. Now students, we shall know how a wool produce. प्रोडक्शन ऑफ वूल, उत्पादन, वूल का उत्पादन कैसे होता है। रियरिंग, देयर इज़ मैनी स्टेप्स, उसको हम लोग देखेंगे। वूल कम्स फ्रॉम मेनली फ्रॉम sheep. In order to obtain wool, sheep are reared and bred, and their hair is cut, processed into wool. We will first discuss and rear and breeding of the sheep. Rearing and breeding क्या है? Rearing of sheep means to look after the sheep by providing them food, shelter and health. Rearing means होता है उसका sheep का पालन, कैसे उसको प्रोवाइड करा के sheep
और ये सब प्रोवाइड करा के उसको देखना। A person who look after sheep or sheep, the person who look after the sheep are called shepherd, उसको हम shepherd कहते हैं, गड़ेरिया। Sheep are herbivorous, ये जो है herbivorous होते हैं, they eat herbs, prefer to eat grass and leaves, so shepherd take the herd of sheep to the countryside for grazing, उसको चराने के लिए ले जाते हैं, grazing मतलब। Apart from grazing grass, sheep are also fed up mixture of pulses, corn, मक्का, ज्वार, oil cake मतलब खली, इनको दिया जाता है। Oil cake is material left after the extraction of oil from the oil seed. The minerals in winter sheep are kept indoors, इसको winter में उसको indoor रखा जाता है, fed on leaves and grains and dry fodder. Certain breeds of have thick coat of hair on their body which yields good quality wool large quantities. These are called sheep of good breed. Such sheep are selectively bred by choosing at least one parent sheep of the good breed. So the breeding of sheep is done to obtain such breed of sheep which yields good quality wool in large quantity. अब how wool is obtained from the sheep? Here is the steps and we must try to know the steps कि कैसे तैयार होता है। तो पहला देखिए स्टेप्स है द शेयरिंग। शेयरिंग क्या है इसको पहले हम लोग देखेंगे कि दो रिमूविंग ऑफ हेयर, यानी उसके बॉडी से हेयर को रिमूव करना, उसको हम शेयरिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ sheep in the form of fleece is called shearing. The hair of sheep are cut off by using a cutting machine. एक कटिंग मशीन आता है, उससे शेयर किया जाता है। मशीन सिमिलर टू दैट used by barber, जो नाई यूज करते हैं। The hairy skin of the sheep is removed in one piece and is called fleece. Shearing does not hurt the sheep because that support uppermost layer of the skin of the sheep is dead. वह उसको देखिए ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं करता है, उसके अपर मोस्ट लेयर को डेड होता है, ऑलमोस्ट डेड होता है। इसके कारण जब उसकी शेयरिंग करते हैं तो उसको दर्द नहीं होता है। शेयरिंग समर, सो दैट शेयरिंग टाइम जो है वह समर होता है, सो दैट sheep may survive without their protective coat of hair. Hair of sheep grow again before the onset of the winter. विंटर की शुरुआत में ही वो फिर ग्रो हो जाता है। Fleece of the sheep provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. Scoring, सेकेंड स्टेप स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग क्या होता है, इसमें जो है फ्लीस जो हमें प्राप्त होता है शेयरिंग के बाद, यानी फ्लीस जो शिप से प्राप्त होता है, उस फ्लीस से डर्ट और डस्ट और जो ड्राइड स्वेट और ग्रीज जो फैट होते हैं उनको धोने, उसको साफ़ किया जाता है। मस्ट बी क्लीन बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड, इसको जो है क्लीन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस एंड कट द hair of the sheep that remove dust, dirt, dried sweat, grease is called scouring. Scouring makes the fleece of sheep clean. उससे जो है sheep का जो fleece होता है वो clean हो जाता है। थर्ड स्टेप sortings. Wool is not uniform in all the parts of fleece of a sheep. सभी जगह पे जो है वो सेम नहीं होता है, उसका अलग अलग क्वालिटी होता है। सो उसको क्वालिटी के आधार पे सेपरेट करना, दैट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग, उसको सॉर्टिंग कहते हैं। एंड डाइंग, जो उससे प्राप्त होता है उसको कलर करना, यानी जिस कलर में आप चाहते हैं। डाइंग मीन्स रंगना, कलर करना। कॉम्बिंग, कॉम्बिंग क्या होता है, कॉम्बिंग इज ए मेथड टू प्रिपेयर वूलन फाइबर फॉर स्पिनिंग यार्न। दिस इज यूजिंग कॉम्ब हैविंग मेटल टीथ। The process of combing strengthens the entangled woolen fiber, remove the small fluffy fibers called burrs.
विच में बी कॉट। स्पिनिंग, फिर उसको काटते हैं, जैसे मैंने बताया था वैसे काटते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड, जीविका के लिए एक अच्छा साधन है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। द पीपल हु डू द जॉब ऑफ सॉर्टिंग द फ्लीस ऑफ शीप इनटू द डिफरेंट क्वालिटी आर कॉल्ड सॉर्टर्स, इनको हम सॉर्टर्स कहते हैं। सॉर्टर्स जॉब इज़ वेरी रिस्की बिकॉज समटाइम्स they infected by the bacteria समटाइम्स जो सॉर्टर्स होते हैं कभी कभी इनके जॉब्स जो है बहुत रिस्की होते हैं। दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्राक्स with deadly blood disease called Sorter's disease. The risk faced by people working in the industry due to nature of their work are called occupational hazards. Sorter's disease is an occupational hazard. सिल्क क्या होता है? सिल्क आप जानते हैं, आप योर मदर्स wears silky sarees in at your house. Silk is a fine, strong, soft and shining fibers produced by silkworm in making their cocoon. Silk is, तो देखिए cocoon से प्राप्त होता है रेशम, इन हिंदी में silk is a natural fibers. Silk जो है कि natural fiber which obtained from an insect called silk moth. So silk yarn is as strong as comparable थ्रेड ऑफ स्टील के समान वह लगभग मजबूत होता है। सिल्क फाइबर कन्वर्टेड इनटू सिल्क यार्न, उसको जो है सिल्क यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड सो सिल्क यार्न इज मेकिंग सिल्क क्लॉथ। दिस सिल्क क्लॉथ इज देन यूज फॉर मेकिंग साड़ीज एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जानते हैं, मीन्स रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म का पालना और उससे सिल्क प्राप्त करना, इसको हम सिल्क। सेरिकल्चर मीन्स सिल्क फार्मिंग। सेरिकल्चर इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल, व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है। बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। इसके लिए हमें लाइफ हिस्ट्री सिल्क मोथ का जानना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क। एक्स यहाँ पे दिया है, एक्स टू लार्वा, लार्वा टू प्यूपा, प्यूपा टू सिल्क मोथ, ऐसे तैयार होते हैं। सिल्क मोथ इज़ ए काइंड ऑफ इंसेक्ट, एक प्रकार का इंसेक्ट होता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज सिल्क मोथ इज़ नॉट फॉर्म्ड एज सच फ्रॉम एग डायरेक्टली, एक से डायरेक्टली नहीं बनता है। सिल्क मोथ पास्ड थ्रू अ वार्म लाइफ स्टेज कॉल्ड लार्वा और कैटरपिलर, ऐसे स्टेज से जाता है जिसको विच इज़ आल्सो कॉल्ड सिल्क वर्म, जिसको सिल्क वर्म कहते हैं। एंड इनकेज्ड फ्रॉम कॉल्ड प्यूपा ड्यूरिंग इट डेवलपमेंट बिटवीन हैचिंग द एग्स फॉर्मेशन द एडल्ट सिल्क मोथ। दिस कैन बी रिटन है, इसको देख। लार्वा caterpillar, larva and pupa stage in the life of history of life. Silk moth are totally different appearance from the adult silk moth. It is larva of silk moth which produce करता है silk, not adult silk moth. Larva of silk moth which produce silk is called silkworm. We can describe the life history of silk moth as follows. Female silk moth lays egg on the leaves of a silk tree, जो मलबेरी ट्रीज की पत्तियां खा के करती हैं। The eggs hatch from worm like larva and larva of silk moth are called caterpillar. The silkworm feed on the leaves of mulberry trees, grow bigger in size. Silk is formed in liquid form in two glands in the silkworm sense. सिल्कवर्म के सिर में
जो 2 ग्लैंड होते हैं उसी से बनता है। When silkworm or caterpillar is ready to enter the next stage of its development called pupa, it first weaves a net to hold itself. सबसे पहले वह खुद को होल्ड करने के लिए नेट को बिल्ड करता है। Then it swings its head from side to side in front of figure of 8 in its head, which solidified to exposure to airs and become a silk fiber. The silky covering spun by silkworm of silk moth is called cocoon. जो सिल्की कवरी एक तैयार करते हैं उसको हम ककून बोलते हैं। द ककून इज मेड बाय सिल्कवर्म। ककून जो होता है वो सिल्कवर्म के द्वारा मेड किया जाता है। एंड बिकम इनकेज्ड इन ए हार्ड सेल और सिल्क फाइबर कॉल्ड ककून। द सिल्कवर्म कंटिन्यूज टू डेवलप in the form of pupa inside the cocoon to form Please note that in order to produce silkworm, developing inside a cocoon is very interesting. So students, you should mind this. अब देखिए यहाँ पे हम जानेंगे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, हाउ अ सिल्क प्रोड्यूस। आप जानते हैं कोकून से ही सिल्क प्राप्त होता है और कोकून कैसे मिलता है, तो यहाँ पे देखिए रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 eggs एट ए टाइम। जैसा अभी मैंने पीछे बताया आपको, द एग्स ऑफ सिल्क मोथ आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप पे उसको स्टोर किया जाता है। सोल्ड टू सिल्क वार्म फाइबर्स, जो सिल्क वार्म फाइबर्स होते हैं उनको बेच दिया जाता है। फार्मर कीप दीज एग एट सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अंडर हाइजेनिक कंडीशन, मतलब गंदगी वगैरह नहीं रहना चाहिए। द एग्स आर देन वार्म टू द सुटेबल टेम्परेचर फॉर हैचिंग। फिर हैचिंग के लिए सुटेबल टेम्परेचर्स तक गर्म करते हैं। व्हेन द एग हैच सिल्कवर्म कम आउट ऑफ द एग्स, एग से बाहर आ जाता है। इसको मलबेरी की पत्तियाँ खिलाई जाती हैं। मलबेरी की सिल्कवर्म्स 8 days and night ग्रो बिग इन साइज आफ्टर अबाउट 25 और 30 days। 25 से 30 दिनों में ये बढ़ जाता है। सिल्कवर्म्स स्टॉप ईटिंग एंड गेट रेडी टू स्पिन ककून। फिर वह ककून को बुनने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं द सिल्कवर्म ईट डेज एंड नाइट ग्रो बिग इन साइज। द सिल्कवर्म स्टॉप ईटिंग गेट रेडी टू स्पून ककून। द सिल्कवर्म क्लाइम द ट्विग प्लेस्ड नियर देम एंड स्पिन ककून ऑफ सिल्क फाइबर्स। सिल्कवर्म इनक्लोज themselves completely inside the silken cocoon। सिल्कन जो ककून होता है उसके अंदर अपने आप को क्लोज कर देता है 2 या 3 दिनों के लिए। प्रोसेसिंग क्या होता है इसको देखिए। प्रोसेसिंग ऑफ ककून टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। क्या क्या होते हैं। ऑल ककून्स आर कलेक्टेड एट वन प्लेस। उसको एक स्थान पर इकट्ठा कर लेते हैं। पाइल्स ऑफ ककून यूज फॉर मेकिंग सिल्क फाइबर्स। दिस इज डन एज फॉलो। The pile of cocoon is placed in hot water. Hot water makes the silk fiber of cocoon to separate out. The long silk fibers are obtained by unwinding thread from cocoon. The process of taking out silk fiber from cocoon for use as a silk is called reeling. उसको हम reeling बोलते हैं। रीलिंग इज़ डन इन स्फेरिकल मशीन। एक स्फेरिकल मशीन आता है उससे किया जाता है। कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर्स इनटू सिल्क क्लॉथ। उसको सिल्क फाइबर से सिल्क क्लॉथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स और स्पन। उसको ट्विस्ट करके बनाया जाता है थ्रेड लाइक सिल्क यार्न। सिल्क यार्न इज़ देन ओवन ऑन लूम इनटू, फिर उसको लूम पे बुना जाता है बाय वीवर्स। थर्ड्स है डिफरेंट वेराइटी ऑफ द सिल्क। और कई वेराइटीज़ हैं, ये नहीं है कि सिंगल वेराइटी है। सिल्क की कई वैरायटी हैं, आप देख सकते हैं इसको।
There is a variety of silk moth which look very different from one another, जो एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं. Silk produced by silkworm of different varieties of silk moth is different in texture, बनावट में अलग होते हैं. Coarse, smooth, shiny. Some of the variety of silk are mulberry silk, tasar silk, muga silk. These are the variety of the silk. Kosa silk, Aries silk. These silk are obtained from cocoon spun by the silkworm. Different types of the silk made. Moth is a mulberry silk moth. Moth is a mulberry silk moth. The silk obtained from the cocoon of mulberry silk moth is called mulberry silk. मलबेरी सिल्क इज सॉफ्ट, लस्चरस, शाइनी होता है, इलास्टिक होता है, लचीला होता है. कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर. इसको ब्यूटीफुल कलर में डाइड भी कर सकते हैं. नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क. आर्टिफिशियल सिल्क होता है रेयान. नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन, जैसे आप जानें कि कैसे सिल्क वार्म से बनता है. इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन. और दूसरा होता है नेचुरल सिल्क इज़ ए एनिमल फाइबर, वेयर एज आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड प्लांट्स, वो प्लांट से प्राप्त होता है. इट इज़ मेड ऑफ मॉडिफाइड प्लांट्स मटेरियल. मॉडिफाइड प्लांट मटेरियल सेलुलोज से बना होता है. इज़ आल्सो मेड ऑफ सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प. वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल फाइबर सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क बाय परफॉर्मिंग द बर्निंग टेस्ट. बर्निंग टेस्ट से हम उसको पहचान सकते हैं कि कौन सा आर्टिफिशियल है. तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया है द फैब्रिक विच बर्न्स गिविंग ए स्मेल हेयर विल बी नेचुरल फाइबर. जो हेयर की तरह स्मेल करता है नेचुरल फाइबर्स, और जो पेपर की तरह जलने पर स्मेल करता हो नेचुरल फाइबर. डिस्कवरी ऑफ सिल्क, दिस इज़ ए स्टोरी. इसको आप लोग ध्यान से देखें. डिस्कवरी मतलब खोज. सिल्क की खोज कैसे हुई? डिस्कवरी ऑफ सिल्क वाज मेड इन चाइना अ लॉन्ग टाइम बैक. बहुत ही पहले चाइना ने इसकी खोज कर लिया था. इट इज़ सेड दैट चाइनीज एम्प्रेस सी लोंग ची वाज आस्क्ड बाय द एम्परर हुएंग टी टू फाइंड कॉज ऑफ डैमेज लीव्स ऑफ मलबेरी ट्री इन देयर गार्डन. एम्प्रेस फाउंड सम वाइट worms eating of mulberry leaves. She also noticed that these worms were spinning cocoon around them. A cocoon dropped into her cup of tea accidentally. और एक cocoon का एक बूंद उनके उस पर गिर गया. And delicate silk thread separated from cocoon. This is how silk was discovered by chance. Discovery of silk led to the beginning of silk industry in China. The silk production in China was kept as a secret for hundreds of years. और इसकी खोज को लगभग 100 वर्षों तक गुप्त रखा गया. Later on traders travelers coming from China introduced silk to other countries. The route on which they traveled is still called Silk Road. Even today China leads the world in silk production. India is also among the leading silk producing countries of the world. In India, a large number of women are engaged in various activities related to silk production, such as rearing of silkworm, reeling of silkworm, processing of different functions. So students, I hope आपने enjoy किया. You have enjoyed how a silk obtained from silk moth and how a silk. तो ये चैप्टर था. I hope you have enjoyed well. Thank you very much. Good day.